into films भी नहीं चाहिए था. I wanted to make a show which I wanted to tell a story about. So that was a fabulous journey. It's been a fabulous journey with this team of Umesh Bansal, Divya Ravichandran, Akhilesh and Dinesh, and all those guys. And of course Mr. Chandra, who has been really, really nice to me and said, आपको क्या चाहिए? Creative या पैसा? So I said, creative चाहिए. पैसा तो आ जाएगा. So anyway, going back to the show, बहुत मजेदार show है. It takes you back to that old days of Vasu Chatterjee or Rishikesh Mukherjee films, where you kind of connect. It's like an everyday, but थोड़ा different है. Loss तो होना ही है. After all, I'm from Vaishnav. Can we have a little bit from Myra and Kavish about the characters? Hi everyone, I'm Myra Kohli, and Myra is a simple girl. वो ambitious है, उसे journalist बनना है, और लेकिन उसके लिए उसकी फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट होती है. तो अगर उसे अपना ड्रीम जो जर्नलिस्ट बनना है, she has to sacrifice that. So she's ready to do it at the drop of the hat. Myra's a little complicated girl. She looks a little bit. She might come across a little harsh to the outside world, but complicated, yes. She's a little complicated, but in her heart she's very simple, and she's a completely white character. Ideal लड़की है, and अपनी मम्मी से बहुत प्यार करती है, and her mom also loves her a lot amongst all the three sisters. उन्हें लगता है कि मायरा परफेक्ट है और कभी कोई गलती नहीं कर पाएगी, और मायरा उस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत कर रही है to fulfill her mother's dreams rather than hers. And मेरे दो बहनें हैं, आबा और रिया. आबा से मायरा is very close. वो इमोशनली जो भी बातें होते हैं बहनों के बीच, she confides more in आबा क्योंकि she's the elder sister, और उसे लगता है कि वो ज़्यादा mature है, so उनकी advice जो होती है it's better. एंड रिया तो सिर्फ 1 साल बड़ी है मुझसे, तो बहुत लड़ाई झगड़ा whatever सब कुछ होता है हमारे बीच, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को बहुत बहुत प्यार करते हैं, एंड एक दूसरे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है. और वी हैव अ नेफ्यू आल्सो, आबा की बेटे जो है आर्यन, ही इज द एप्पल ऑफ एवरी कोली वुमन्स आई. And then she eventually meets Kabir, and her world goes upside down after he comes into her life. And yeah, that's the journey, and you guys get to see everything. And he was amazing, by the way. I don't know about you guys, but I really liked it. Sameer. Hi guys, good afternoon. मेरा नाम है समीर अरोड़ा. The character I'm playing is Kabir Miranda from Brazil. He's an international journalist, globe-trotting international journalist, born in Brazil, half Brazilian, half Indian. So, since I say globe-trotting, so he keeps traveling around the world for his assignments. He's a freelance journalist with one of leading channels, international leading channels. और फिलहाल ये इंडिया में है अपने किसी असाइनमेंट के लिए, कोई किसी एक स्टोरी कवर करने के लिए, and that's how I meet Myra Kohli in Mumbai, and the journey begins. That's it. That's now the character. And it's a 6:30 slot, so 6:30 slot पे आपको लगता है कि लोग होंगे, because normally if you see about television, then it's like a prime time. And it's always coming on these that's a big thing for me. And what I actually told my but really it was the future. It's not an high drama. So this side. So here. Center camera. So this side. Center. The right side. Thank you. This side.
right side. Right. Yeah, looking all of you. I'm here. This center. I'm right side. Thank you. I'm right side. सबसे पहले तो बिन कुछ करने किस तरह का शो होने वाला है थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताइए और किस तरह के किरदार निभाने वाले हैं आप Should I photocopy on? वो हमारी प्रोड्यूसर जी है तो बिन कुछ कहे बहुत ही अलग शो है. आई डोंट थिंक आपको टेलीविज़न में आजकल ऐसे शोज देखने को मिलेंगे. स्टोरी, कैरेक्टर्स, इमोशंस बहुत ही रियल है. ओवर द टॉप बिल्कुल नहीं है. ड्रामा है, कॉमेडी है, रोमांस है, लाइट शो है. तो आप जब देखेंगे आप स्ट्रेस फ्री देख लेंगे एंड इट्स एंटरटेनिंग. So you'll be happy watching it. You won't be sad for sure. बिन कुछ कहे हम मैंने जो मेरा थॉट है इसको लेकर बिना कुछ कहे हम आपको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करवाएंगे. हर एक वो इमोशन जो आपको हंसाए, रुलाए, थोड़ा सा टिंच ऑफ ड्रामा, फैमिलीज, सो काम को लेकर आपकी पर्सनल लाइफ, हर इमोशन हम आपको प्रेजेंट करेंगे कह के भी और बिन कुछ कहे भी. सो आपको देखना बहुत ज़रूरी है. एक मौका दीजिएगा देखने का. आई एम श्योर यू विल लव इट. हर किसी की लाइफ में ऐसा कोई होता है जो हम बिना कुछ कहे वो समझ जाते हैं हमारी बात को. तो ऐसा कोई पर्सनल लाइफ में या कैरेक्टर में? पर्सनल लाइफ. पर्सनल लाइफ में बहुत व्हाट्सएप करते हैं हम लोग. अगर नहीं कहते हैं तो व्हाट्सएप करते हैं. किडिंग. बट नहीं, देयर इज नोबडी इन माय लाइफ दैट आई वुड वांट टू से एनीथिंग बिन कुछ कहे. नहीं ऐसा आप पर्सनल लाइफ में आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पूछ रहे हैं या वैसे ही कुछ पूछ रहे हैं? एनीवन. अच्छा. या फिर कोई भी हो सकता है. पर्सनल लाइफ में डेफिनेटली मेरी फैमिली. ऐसा रिलेशनशिप आप शेयर करते हो अपनी फैमिली से कि आपको कहने की ज़रूरत नहीं है शब्दों में कि आपको उनसे कितना प्यार है या आप जो कुछ कर रहे हो आप फैमिली के लिए कर रहे हो. कहीं ना कहीं आप उनको खुश देखना चाहते हो. तो बिन कुछ कहे मेरी आंखों में सब दिख रहा है. जर्नलिस्ट का रोल प्ले कर रहा है, कितना चैलेंजिंग और कितना फन था ये रोल प्ले करना? जर्नलिस्ट का रोल मेरे लिए तो चैलेंजिंग भी था, फ़न भी था. बिकॉज एक एक्टर के लिए एक नया कैरेक्टर प्ले करना, उसके न्यूएंसेस को जानना, उनके एक जर्नलिस्ट के मैनरिज्म को जानना, उनका उठना बैठना, स्टाइलिंग, कॉस्ट्यूम, कॉन्फिडेंस, एक एक चीज़ पे रिसर्च करना. और मैं तो हाफ ब्राज़ीलियन और हाफ इंडियन हूँ तो मुझे दोनों साइड के जर्नलिज्म पे रिसर्च करनी थी. सो हैज़ बीन अ वेरी चैलेंजिंग एंड एक्साइटिंग जर्नी एंड आई एम एन्जॉइंग एवरी बिट ऑफ इट. एंड हैट्स ऑफ, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर जर्नलिस्ट. जो काम उनको दिया जाता है वो जैसे कॉन्फिडेंस के साथ इतने बोल्ड होके करते हैं. धूप हो, शाम हो, तूफ़ान हो, उनको अपना काम करना है. और वेरी इंफॉर्मेटिव, पूरी दुनिया की खबर रखनी है. सर्वाइवल भी है, फैमिली भी है. लॉट ऑफ रिस्पेक्ट. और शूट करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? कैसी केमिस्ट्री थी आप दोनों की? केमिस्ट्री जानने के लिए तो आपको शो देखना पड़ेगा क्योंकि हमारी केमिस्ट्री इस शो में ऐसी है. बिल्कुल ऐसा नहीं है एक लड़का एक लड़की है, प्यार हो गया, शो खत्म. एक्सक्यूज़ मी यार, थोड़ा डिफरेंट, समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स. आप अगर प्रोमो ही देखो तो आपको कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा. दो डिफरेंट कल्चर मिलते हैं एक टाइम पे और वो अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे से, नहीं होते हैं वो आप लोग बताएंगे हमें देख के. फ़िलहाल अभी तक हम अट्रैक्ट नहीं हुए हैं. हम लोग दी वन लाइन स्टेटमेंट इज ऑपोजिट अट्रैक्ट. सो वी मे अट्रैक्ट और वी मे नॉट अट्रैक्ट. प्लीज़ वॉच द शो. ऑल्सो यू लर्न अ लॉट. वी लर्न अ लॉट फ्रॉम ईच अदर. क्योंकि हम लोग जयपुर में शूट कर रहे हैं इतने महीने से. सो पर्सनली ऑल्सो वी नो ईच अदर वेरी वेल. तो टू एक्ट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, वो केमिस्ट्री, कंफर्ट लेवल बहुत ही अच्छा है. सो आई कैन से दैट ही इज़ माई फ्रेंड, माई गुड फ्रेंड. सो दैट हेल्प्स अ लॉट. जयपुर पिंक सिटी में आप लोग शूट कर रहे हैं. तो ऐसा कभी हुआ कि मतलब शूटिंग से टाइम निकाल कर कोई फन टाइम या फिर ऐसी कुछ मेमोरी शेयर करना चाहेंगे आज? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. शूटिंग के अलावा फन टाइम हम लोग कभी भी ऐसा होता है कि हमें 30 डेज़ में 1-2 दिन कभी ऑफ मिलता है तो हम लोग डेफिनेटली गेट टुगेदर्स करते हैं, कॉफ़ी पे जाते हैं, डिनर पार्टीज़ के लिए जाते हैं, म्यूज़िक एंजॉय करते हैं. और सेट पे जो हम लोग चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और यू नो वी टॉक अबाउट इट.
वो मस्ती, वो शॉट्स, कौन सा हमने एक्सपीरियंस किया, सबसे अच्छा शॉट कौन सा, बहुत फ़नी था, बहुत इमोशन से भरा था, तो ये सब चीज़ें डिस्कस करने में अपार्ट फ्रॉम योर वर्क, अपार्ट फ्रॉम योर सेट, इट्स वेरी एंटरटेनिंग, इट्स वेरी एक्साइटिंग फॉर मी। और हम दोनों बीइंग अ जर्नलिस्ट, यू नो, फ्री टाइम में भी हम लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं हम लोग अपने काम को ही उस तरीके से एंजॉय करें। ऑल्सो लाइक पूरा कास्ट और क्रू एक साथ रहते हैं, तो जब हमें बाहर जाना है, वी ऑल गो टुगेदर, वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर, एंड दे आर ऑल अ रियली गुड बंच ऑफ पीपल। तो किसी के बीच कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, लकीली सब बहुत ही अच्छे हैं, तो एनवायरनमेंट जो है बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव है। इससे पहले you were working with Star Plus Head West. जी। Now you're working with Zee Head West. Zee के साथ काम करने का experience कैसा है? It's good. I mean, both the channels are good, and for me the main thing was story. मुझे राजश्री मैम के साथ काम करना था, मुझे आयशा बहुत पसंद है। ऑल्सो फाइनाइट शो है, स्टोरी बहुत ही अलग है एवरेस्ट से। मुझे जो यहाँ पर करने को मिल रहा है वहाँ पर मैंने नहीं किया, तो एज एन एक्टर आई फील क्रिएटिवली वेरी सेटिस्फाइड। एनीथिंग यू वांट टू से टू ऑडियंस अबाउट योर शो, कब से आ रहा है और मतलब क्या खास बात देखने मिलेगी? फ्रेंड्स, बिन कुछ कहे आप देख सकते हैं 6 फरवरी से 6:30 बजे शाम को। आई एम श्योर आप लोग बिज़ी भी होंगे, शायद आपको टाइम मिले ना मिले, लेकिन एक बार आप टाइम निकाल के देखिएगा, कोशिश कीजिएगा, आपको शो बहुत पसंद आएगा। और इतने बिजी स्केड्यूल से आप 20 मिनट तो निकाल ही सकते हैं। एंड प्लीज़ वॉच अस। थैंक यू।